No? And when it comes to sustainable development goals, somewhere it strikes to our mind that we, the people from academia, how we are related to this very thing and how we can play our role, not as a human being, but rather as an academician, what steps we can take and how our education policy or our education system is related with this very much sustainable development goals. So let's have a look on this very thing. Let me allow to share the presentation with you. Kindly let me know. It's very difficult. Just a second. Is it visible? Yes, ma'am, it's Yes, ma'am. visible. Yes, Thank ma'am. you. It's visible. So the thing is that the moment we talk about sustainable development goals, certainly it is not always about environment. It is also about economy. It is also about society. It is always about the quality of the people, of the life or quality of the people of this whole globe, rather. So, how we are thinking about the same? What's our perspective? What's the plan of new education policy towards the same? And how the society is responding to the same? Let's have a look. First, I am just showing you two pictures, and I would like to have response from you people that what exactly you are looking at in these pictures. The first is this one, and the second one. Once more, I am going through. Kindly have a look. And I'm asking to you people that what exactly you observe in this very one. क्या लगा आप लोगों को ये दो पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है क्या दिखाना चाह रहा है देयर वेर टू पिक्चर्स एनीवन Ma'am, first is of Stone Age man, and second one is of modernization and its okay effect on environment. okay and when we talk in terms of sustainability what exactly it is reflecting क्या अंतर आया है Modernization, pollution. okay something else anyone किसी का और कोई observation Ma'am, in the first picture, the prehistoric man was surrounded by a lot of others as well. Maybe there was a lot of focus towards a common goal. But in the next picture, there is a lot of technology, but he is alone. Man is alone. So maybe Man he is has alone. goal, the environment in terms of development, something like that. But man, okay, that's a new observation. Okay, anyone else? किसी को और कोई नई चीज दिखी पड़ी हो इसमें या कोई किसी और एंगल से लोगों ने इसको देखा हो? मैम ये पिक्चर हमें प्रॉपर दिख नहीं रही है आगे एक और स्लाइड आ रही है Yes, that's the thing. Okay, ये तो मैंने स्क्रीन चेंज किया था. That's why अब बताएं आप. ये दो पिक्चर्स थे. आज के युग में मैडम मानव अकेला रह गया है आज के युग में मानव अकेला रह गया है. चलिए किसी ने इसको उस दृष्टि से भी देखा और जरा सा इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में बात कर लिया जाए तो व्हाट आई रियली वांटेड टू डिपिक्ट ओवर हियर दैट कि ये प्री हिस्टोरिक एरा का आप सराउंडिंग या इन्वायरमेंट देख लें और ये आज टेक्नोलॉजी एनाबल्ड हमारा और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एनाबल्ड हमारा सिचुएशन देख लें the human brain or the human mind that always remained same हम इस युग में भी एग्जिस्ट करते थे और अपने सर्वाइवल के लिए चीजें खोज निकालते थे और ये जहाँ किसी ने कहा कि इसमें अकेलापन भी दिख रहा है बट इस एज में भी हम अपने सर्वाइवल के लिए वी सो आर रेजिलियंस एज ए मींस पार्ट ऑफ नेचर नाउ द थिंग इज दैट इवन द ब्रेन साइज रिमेन सेम अगर ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी को बायोलॉजी वाले ज्यादा समझेंगे साइंस के टर्म में कह लिया जाए तो मोर और लेस कहिएगा कि 1600 से 1650 सीसी की क्रैनियम कैपेसिटी जो कि उस समय में भी थी और आज तक है तो कहीं ना कहीं होमो सैपियन सैपियन के फॉर्म में हमारा इवोल्यूशन जो है
वो इन्वायरमेंट में बहुत से चेंजेस को देखा, but still it always adapted itself and it remained the part of the ecosystem. And that's why I do say कि somewhere human brain is the most flexible thing. ये अपने आप को हर परिस्थिति में adjust कर लेता है। और होता क्या है कि all the time we try to manipulate our environment for the betterment of ours. The thing is that कि पहले जब इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट की बात की जाती थी, एकेडमिक में हम लोग इसके सब्जेक्ट का पार्ट इसको समझते थे। इकोलॉजी किस में पढ़ना पड़ता था? इकोलॉजी किस सब्जेक्ट का पार्ट होता है? बायो साइंस का पार्ट है। मोर और लेस इट इज लाइफ साइंसेस। कहीं ना कहीं मान के चला गया कि लाइफ साइंसेस का पार्ट है, लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए, वो कहा जाता है ना कि जो सेलेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसका मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, उस पर सब कोई क्लेम करना चाहता है। आज के डेट में केमिस्ट्री भी कहता है कि द होल दिस क्लाइमेट चेंज, दिस एनवायरनमेंट इज आवर सब्जेक्ट। ज्योग्राफी में भी कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि नहीं नहीं, इवोल्यूशन तो हमारा पार्ट है, ये तो हम क्लेम करते हैं हमारा सब्जेक्ट है। इवन कि आप देखिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट भी आज इसको अपने करिकुलम का पार्ट बना रहे हैं। व्हाई सो? व्हाई इट हैज बिकम सो मच इम्पोर्टेंट? बिकॉज समवेयर एनवायरनमेंट हैज बिकम अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, and that's why every subject want to bring that sensitivity towards the environment in their students, in their society, or the part of their ecosystem. और इकोसिस्टम की भी बात की जाए ना, तो पहले बहुत क्लियर सा फंडा होता था। इतना साइंस तो सबने क्लास 8, 9, 10 तक पढ़ा होगा कि बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट को मिलकर के बना हुआ है, मींस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के इंटरैक्शन को। लेकिन आज के बदलते दौर में इकोसिस्टम का डेफिनेशन भी बदल चुका है। We have now more component to this very ecosystem. What's the component of the environment now? We talk about nature where biotic and abiotic factor are interacting. We also talk about human beings. Human beings means we talk about religion, we talk about the community structure, family structure, the educational qualification level of the society and all. So the thing is that the various paradigm of the human existence is also being added to the same, and at the same time human infrastructure, it means the development that is being done by the human beings, be it religious places, be it industrial places, be it infrastructure development, be it monumental development. It means all the existence parameter of the human beings are now the component of environment. So you can understand that even the definition of ecosystem or environment is being changing with the changing scenario of this whole world. Now the thing is that we do say ki as we are developing, and the moment I said ki with the changing scenario, and somewhere we do consider that from prehistoric till time we have developed a lot. अब सबसे बड़ी बात उठती है, हम कहते तो है डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट है क्या? आप किस चीज को डेवलपमेंट मानते हैं? इससे पहले किसको डिस्कस करें, लेट्स हैव अ रिस्पांस फ्रॉम यू पार्टिसिपेंट्स। आपका पर्सनल फीलिंग क्या है? आप किसको डेवलपमेंट मानते हैं? मैडम, डेवलपमेंट है वो जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है सोसाइटी में या किसी व्यक्ति में, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अगर क्वालिटी किस चीज की क्वालिटी कहेंगे सर? एजुकेशन की क्वालिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की क्वालिटी, रिसोर्सेज की क्वालिटी, किसकी क्वालिटी की बात आप कहेंगे? ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई एवरीथिंग मैडम। ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई हर एक चीज की क्वालिटी बढ़नी चाहिए। ओके, ठीक है। तो सर कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि ये कहीं ना कहीं रिलेटिव टर्म्स है, इजंट इट? दूसरे के कंपैरिजन में हम कितना बेहतर हैं? और कोई डेवलपमेंट को कैसे देखता है? आप क्या मानेंगे डेवलपमेंट को? किसी और का कोई रिस्पॉन्स? और कोई डेवलपमेंट के लिए कोई पैरामीटर?
कुछ Yes. और बेहतर हो मैम, आगे बढ़े हम लोग, कुछ अच्छा, नया हो। हाँ बिल्कुल, कुछ बेहतर हो। सबने भी कहा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, आपने भी कहा कुछ बेहतर हो। मैं एक सिंपल बहुत सीधी सादी सी बात कहती हूँ। हम सभी कहते हैं अमेरिका वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, isn't it? क्यों कह देते हैं? There is a technological Because development. technology टेक्नोलॉजिकल Standard of life. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से डेवलपमेंट होगा अगर मैम यस मैडम यस विनोद जी लाइफ, प्लीज। जी मैडम, वो जी। लाइफ के जितने एस्पेक्ट्स आप देखेंगे वहां पर, फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, अपने विकास करने के लिए, आप हर क्षेत्र में उनको वह आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी वहां मिलती है, चाहे सूचना का एक्सेस हो। जी, इन्होंने कहा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सारे पैरामीटर्स पे जब उसके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हो, तो व्हेन एवर डेवलपमेंट की जब बात कहते हैं तो एक बात आती है कि अलग अलग पैरामीटर्स रखे जा सकते हैं, isn't it? जैसे कि टेक्नोलॉजी में अमेरिका आगे है, इकोनॉमी में अमेरिका आगे है, तो सिर्फ उसी को ही हम डेवलपमेंट नहीं मान रहे हैं। अलग अलग समय में डेवलपमेंट के लिए अलग इंडेक्स रखा गया। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि जब कोई टर्म यूज होता है और वो भी नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उसके डेफिनेशंस बहुत क्लियर होते हैं। तो जैसे जैसे पैरामीटर्स बदलते गए, वो डेफिनेशंस के भी मींस फॉर्म्स चेंज होते चले गए। लेकिन टिल टाइम तक अगर कहा जाए तो एक पैरामीटर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन में रहा, वो था प्रोडक्टिविटी। अगर किसी कंट्री की प्रोडक्टिविटी हाई है तो हम उसको क्या मानेंगे? मोर डेवलप्ड मानेंगे। चलिए और भी पैरामीटर्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार, जिसके बारे में हमने बात की। जैसे कहा गया, अगर हम वैदिक एज की बात करें तो कहीं ना कहीं उस समय का कॉन्सेप्ट क्या था, चाहे वो इंडिया हो और चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी, चाहे वो अफ्रीका हो कि अमेरिका हो या मिस्र हो या इजराइल हो, कहा गया कि जहाँ का एजुकेशन सिस्टम हाई होगा, जहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे समझदार होंगे, वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड होगी। एंड दैट वाज द एरा व्हेन वी यूज्ड टू कंसीडर कि शायद भारत सबसे डेवलप्ड था और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता था। नेक्स्ट केम की नहीं, फिनेंशियल डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है। इट मीन्स कि इकोनॉमी किसी कंट्री की अगर स्ट्रांग हो, पर कैपिटा इनकम हाई हो, तो वो एक ज्यादा डेवलप्ड कंट्री हो सकता है। जब एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बात ही की थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद बात कर ली जाए ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो दोनों फेजेस में क्या कहा गया कि जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। लेटर जो आज का समय है, जिसकी टेक्नोलॉजी पे कमांड ज्यादा है या जिसका टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स हाई है, दैट इज मोर डेवलप्ड। तो मोर और लेस, जैसा कि सर ने कहा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सारा पैरामीटर्स, तो हम लोग हेल्थ की भी बात कह सकते हैं, एजुकेशन की भी, और नहीं तो मोर और लेस हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हायर द बेटर लाइफ क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, मोर डेवलप्ड दैट कंट्री इज। एक पैरामीटर और एग्जिस्ट करता है डिस्पाइट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, दैट इज जीएनएच इंडेक्स। व्हाट इज जीएनए इंडेक्स? पर कैपिटा इनकम आप लोग जानते होंगे, प्रोडक्टिविटी जानते होंगे, इवन रिसोर्स यूटिलाइजेशन को लेकर के भी माना गया है कि जैसे मान लीजिए कि दो कंट्रीज का इकोनॉमिक स्टेटस सेम है, लेकिन एक कंट्री के लोग ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस यूज करते हैं तो उनको ज्यादा डेवलप्ड माना जाएगा। यद्यपि कि अब ये सारे डेफिनेशंस बदल रहे हैं, बट अभी तक जो चल रहा है, anyone who has an idea कि what this gross national GNH index, किसी को आइडिया? मैम की एक जो भी हमारी कंट्री है उसके वजह से हम जानते हैं खुशी कितनी है, हैप्पीनेस कितनी है। Yeah, that's it. This is the happiness index I am talking about. और आप सभी जान के ताजुब करेंगे कि इवन हैप्पीनेस को एक नया इंडेक्स के रूप में लाया जा रहा है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। Why so? एक ये भी पाया गया कि इवन इन कंट्री लाइक अमेरिका और इंग्लैंड और एनी डेवलप्ड कंट्री यू टॉक्ड अबाउट, आपके दिमाग में जो सबसे डेवलप्ड कंट्री का नोशन है, सारी फैसिलिटी होने के बावजूद आप देखेंगे कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर और सोसाइटी के नॉर्म्स
दोनों टूट रहे हैं. Youth are becoming more depressed nowadays. More and more people are moving towards drug addiction. Cases of divorce are increasing. Social conflict is increasing. And that's why अब एक नया पैरामीटर हो रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके पास खुशी नहीं है, if you are not satisfied, then all this development is useless. So who is more developed? The one possessing higher degree of happiness. अब हैप्पीनेस तो एक ऐसा क्वालिटी है कि जिसको मेजर करना बहुत मुश्किल है. बहुत से तरीकों से हो सकता है ना. माइट भी कि मेरे पास कुछ भी ना हो और तो भी हमको बहुत फर्क ना पड़ता हो, और आपको पता चल रहा है कि आपके 99% मार्क्स आए हुए हैं और आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि अगले को 99.2% मार्क्स आ गए. यहाँ मैं 60% पे फर्स्ट डिवीजन हूँ और मैं इसी बात को मेरे घर में सेलिब्रेशन चल रहा है. Isn't it? Same thing happen. I may get happy with Alto car till time in my family no has purchased a car, I am purchasing it, and then someone is purchasing Mercedes or something like that and is still not happy. So ये तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा चीज हो जाता है. बट इसके भी बहुत से पैरामीटर्स रखे गए. एंड मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की जो दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग. तो हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको क्या लगता है, जब हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन होगा? नॉर्वेजियन कंट्री मैडम. कौन? ये नॉर्वेजियन कंट्री जो है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे. ओके, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे. और कोई? सर सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, बट द कंट्री नेम which is there? मैम भूटान. भूटान. ओके, भूटान भी एक रिप्लाई आया. गुड. और कोई? और कोई? किसी को आइडिया? अब एक बात सोचिए जरा सी कि द मोमेंट डेवलप्ड कंट्री का नाम बोलने की बारी जब आती है तो हम लोग एक सिरे से क्या कहते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, रशिया, इजंट इट, जर्मनी एंड ऑल. लेकिन जब ये बात आ रही है तो सर ने जिस तरफ इंडिकेट किया, नॉर्वेजियन कंट्री, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज द फिनलैंड व्हिच इज एट द टॉप पोजीशन. उसके बाद आप देख लीजिए डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्वीडन. इट मींस कि ये 1 टॉप 10 का नाम लिया जाए, इसमें कहीं भी आपका अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्रिटेन नहीं आता है. This is a clear indication that despite possessing all quality parameters of development, somewhere when real life quality matters, it is lacking. And that's why even भूटान का जो रिस्पॉन्स आया वो भी गलत रिस्पॉन्स नहीं था. एशियन कंट्री में भूटान नंबर 1 पे है टू possess the highest happiness index. ये रिपोर्ट आपके पास 22 की है. मैं साथ में बता देती हूँ 23 and 24 में भी फिनलैंड इज एट नंबर 1 only. So you all can understand. The thing is that what I want to say, it doesn't matter what you possess or how much facility you possess. It's the thing what type of resilience you show towards the disturbance. It means कि अगर adverse conditions भी हों और आपके पास वो रेजिलियंस है, आपके पास वो पावर है स्मूथली हैंडल कर जाने की, दैट मेक्स यू समवेयर मोस्ट पावरफुल और मोर और लेस मोर सस्टेनेबल. एंड दैट्स व्हाई व्हेन जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है तो मैं हमेशा एक वर्ड यूज करती हूँ, मैं इसे कहती हूँ ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन, इट मींस एनीवन हु हैज आइडिया व्हाट एन ऑक्सीमोरोन इज? इट्स नथिंग बट इंग्लिश वर्ड ऑक्सीमोरोन. Contradictory terms. Yeah, very good. The contradictory terms. It means हिंदी में जो कहते हैं विरोधाभासी शब्द. It means when group of words which are contradictory to each other. You can see this over here. Like if someone is assistant, how it could be supervisor? If something is secret, it can't be open, isn't it? And nonetheless, on a very lighter note, people say if you are married you can't be happy, and when you are happy you can't be married, isn't it? So that's on a lighter note. But what I really want to talk about, the thing is that we talk about development, and development means moving from your position continuously.
And when we talk about sustenance, it means keeping your pace constant, keeping yourself in the existing condition so that you can thrive for longer. तो कहीं ना कहीं मुझे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टिंग सा एक ऑक्सीमोरन सा लगता है। वेल, अब ये बात उठती है कि हमेशा हम लोग इन्वायरमेंट, और हम लोग लास्ट डे जब CBCS की बात कर रहे थे और कंपल्सरी पेपर की बात कर रहे थे, तो वी टॉक्ड अबाउट कि इन्वायरमेंटल साइंस इज वन ऑफ द subject that is being introduced in the academia as an important subject. Why so? तो ये हुआ कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न शो करना चाहिए। लेट्स हैव एन आइडिया कि इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न जगह को आपके स्क्रीन पे ये जो लेडी दिख रही हैं, ये पिक मैंने यहाँ ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रखा है। आप में से कितने जानते हैं या नहीं जानते हैं मैं नहीं जानती हूँ, बट आई एम पुटिंग वन थिंग, शी वाज द वुमन हु फर्स्ट थिंक अबाउट environment, and anyone who knows about her कि why she is famous in her environmental concern? ये कब की बात है और किस कॉन्टेक्स्ट में है? Anyone? Rachel Carson. Ma'am, she is the writer of Silent Spring, the book. Yeah, that's it. That is And quite she is- yes. Yes, ma'am. The concern And- this book is concerned about, sir? Ma'am, it is the basic book of our eco-criticism related to environmental criticism. Okay, somewhere, but I am telling you what the whole context is. If you people can recollect that after the industrial growth, next growth was agricultural growth. And in agricultural growth, what we used to do at that time, we used to use DDT, which is a chemical substance as a fertilizer for the increasing the production of the agricultural products. Now the thing is that this particular chemical is now banned. Why it is banned? Because it is considered as more or less poison. So you people can imagine ki what a situation it was. In order to grow more and more food, we are adding poison to the food. What is the purpose of the food? For the livelihood, for the means necessity of the living beings to be alive. And then we are putting poison over there so that more food can be provided to more people, isn't it? So somewhere I would say women seems to be little bit more sensitive, with due regards to all the male participants of the course. So this lady Rachel Carson, she got that sensitivity that somewhere this increasing use of fertilizers are going to have a bad impact. And you can see in 1962, she came up with a book named Silent Spring. Okay, साइलेंट स्प्रिंग की जब बात हुई तो ये पिक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफी चर्चा का विषय बनी, लेकिन एक कहते हैं ना कि रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, बहुत खास इम्पैक्ट नहीं आया, चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन वी पीपल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विथ आवर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। उसके बाद आप देखिए 1972 में एक बुक आई लिमिट्स टू ग्रोथ, और लिमिट टू ग्रोथ में अगेन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स दिखाया गया। एंड यू कैन इमेजिन कि इस बुक की मोर देन 9 मिलियन कॉपीज आर बीइंग सोल्ड। सो द थिंग इज दैट एक 500 कोई बुक अगर 500 नंबर में भी आज के डेट में बिक जाती है तो उसे कहा जाता है, वो क्या उसका नाम देते हैं, बेस्ट सेलिंग बुक और ब्लॉकबस्टर बुक और समथिंग लाइक दैट। So you all can imagine ki what component this book was containing, and it was reflecting of time and again towards the environmental concern. So these were the earlier concerns on the international platform. After that in 1987 आप सभी जानते हैं कि बर्टलैंड कमीशन आई, और बर्टलैंड कमीशन has shown the concern regarding the sustainable development or the mode of development we used to project at that time. Now the thing is that कि what is sustainable development, और development का जो ये definition है कि which meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. ये particular definition ही आया कहाँ से, बर्टलैंड कमीशन की ओर से।
एंड बर्टलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो एक बुक के फॉर्म में आज भी अवेलेबल है। 1987 में बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी एंड नेम ऑफ द बुक इज नन अदर देन आवर कॉमन फ्यूचर। So it is again a very good document, one to understand environment and environmental concern. Now coming to the thing is, अगर डेवलपमेंट की बात जो चल रही है, जरा सा ये डाटा आप देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड मैंने क्यों कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अलग से। अभी जो डेवलपमेंट का रेट है, ग्लोबल डेवलपमेंट रेट, उस हिसाब से हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। To meet the energy requirement, we would need about 8 more earth. To meet the metal requirement for the production, 7 more earth will be required to excavate the minerals. Wood requirement 3.5 earths, mineral 2, land 1.5 and blah blah blah. You can understand on various parameters we can talk about. तो आप सोचें कि हमारे पास तो प्लैनेट अर्थ एक है, मदर अर्थ एक है, और हमारा रिक्वायरमेंट ही यहाँ मोर देन 14 अर्थ्स का नजर आ रहा है। कहाँ से और अर्थ लाएंगे? Where we will get more earth or more planets who will possess the property of this mother earth? So then came the concept of sustainable development. और जैसा कि कहते हैं ना कि ये जो उसके जितने इम्पैक्ट्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, सबके लिए मेजर कल्प्रिट किसको घोषित कर दिया जाता है? कार्बन इमिशन को, कहते हैं कि नहीं? सो द थिंग इज दैट मैं इस पे कार्बन की ट्रेडिंग अच्छा, आप में से कितने लोग अवेयर है रिगार्डिंग कार्बन ट्रेडिंग, व्हाट द कांसेप्ट इज एंड ऑल? एनीवन हु इज अवेयर व्हाट एग्जैक्टली कार्बन ट्रेडिंग इज? नो? और समवन इज नॉट कमिंग अप दो नोइंग? नाम सुना मैडम? नाम सुना है, ओके सर। मोर और लेस अगर बहुत शॉर्ट में कहूँ, क्योंकि वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेशन लेने वाला टॉपिक हो जाता है। इट इज ऑल लाइक दैट कि in the country or the industry who is producing more carbon, they can keep on continuing with the same, and the extra will be paid by some other country or other industry who is producing less carbon. And what will happen? The one who is producing more, they will compensate either in the money form or in technology form to that another company or that another underdeveloped country. So we won't go in detail for the same. So the thing is that why I wanted to put it over here, that even this climate change, this concern about carbon, and then we talk about net zero, ये सारे भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेके एक आई वॉश है और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करने के लिए व्हाट टू से बेसिकली एक मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है. अगेन इट इज बिकमिंग अ कमोडिटी ओनली rather than becoming the real concern for the environment. But we won't go for the same. I will skip this very thing. So the thing is that कि sustainable development की need कहाँ से arise हुई? जब over exploitation of resources हो गया, further development के लिए scarcity feel हुई, और at the same time क्लाइमेट पे इस डेवलपमेंट का असर दिखाई पड़ने लग गया इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग सी लेवल और इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग टेम्परेचर. सो समवेयर एनवायरमेंटल कंसर्न, इन सब चीजों को मैं स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी ये सब इतने कॉमन टर्म हो गए हैं आज एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे कि एवरीवन इज क्वाइट अवेयर ऑफ दैट ग्लोबल इनिशिएटिव. आप चाहे वो कॉप सम्मेलन की बात कर लें, चाहे फिर वो what to say स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, या फिर रियो द जेनेरियो सम्मेलन की बात कर ले, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस टर्म्स. लाइक कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड डिसीजंस वेयर बीइंग टेकन regarding stock producing more carbon to environment. At the same time, more emphasis was being given to limited or capped utilization of resources. Now the thing is that 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आया, उसके बाद क्या किया गया, 1992 में अर्थ समिट हुई, और ये मोर और लेस क्या कहा जाएगा कि बर्टलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको अब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करने की बात हुई, जिसको हम लोग रियो समिट भी कहते हैं. एंड देन वी कम अप विद
दिस रियो डिक्लेरेशन जहां नेट जीरो की बात अराइज हुई और हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट 97 में जो ये हुआ था वो उसे कॉन्फ्रेंस हुआ वर्ल्ड कंट्रीज का, दैट वाज इन द Kyoto Protocol, and the countries who signed the Kyoto Protocol, they again agreed about reducing their carbon emission and all. So somewhere ये जितने भी conference conventions और जितने भी treaties हुए, this was all regarding the environmental concern only. And then we come towards this Millennium Development Goal. Clear? इरेडिकेशन पॉवर्टी की बात थी, हंगर नहीं होना है, क्वालिटी एजुकेशन होना है, वो टू से जेंडर सेंसिटाइजेशन और इक्वालिटी की बात हुई और ग्लोबल पार्टनरशिप की बात एंड ऑल एंड ऑल। देन नाउ जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को एनालाइज किया गया आफ्टर 5 years, सो व्हाट हैपेंड, वी मूव टुवर्ड्स कि इसको अचीव करने के लिए इसमें और कंपोनेंट्स ऐड करने की जरूरत है, एंड देन वी कम अक्रॉस दिस नन अदर देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप सभी जानते हैं टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? देयर आर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेट पे ये सभी चीजें अवेलेबल है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद द थिंग that how our NEP is also addressing this sustainable development goal, and आप सभी जानते हैं कि it has become a matter of so much concern that nowadays this means not only national but even on the international platforms lots of money is being spent on this very thing. It means कि every year there are conventions, there are meetings, there are conferences regarding these new things, there are meetings regarding climate change and all. So somewhere there is a clear indication that it is becoming a matter of concern. So when new education policy came up, certainly it can't keep itself aloof from all these things. So have a look कि NEP इसमें से किसको किसको एड्रेस कर रही है। बहुत क्विकली मैं कह दूं, आप देखिएगा सस्टेनेबल गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। आप जरा सा इस चारों को रिलेट कर लीजिए। गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी की बात आती है और क्वालिटी एजुकेशन की जब बात आती है, हम लोगों ने उस दिन CBCS की जब बात की थी तब भी हम लोग कह रहे थे कि वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, multidisciplinary education and holistic development of the mankind. So somewhere what if we aspire for that with this development, with vocational skills and with skill oriented courses, we will create mankind who will have some quality so that they can earn their bread and butter. So no poverty and no hunger are the two goals that will be get fulfilled over here. क्वालिटी एजुकेशन की बात तो सारे पैरामीटर्स पे है। जेंडर इक्वालिटी की बात कर ले तो आप सभी जानते हैं कि हमारा तो मेजर थीम ही है, क्या कहता है, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन की बात में क्या कही जाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन। So when we talk about inclusive education, it means कि it asks for providing equal opportunity to all, and somewhere it not only meets gender equality but all other forms of inequality in the society. कास्ट क्रीड के बेसिस पे हो, रीजनलिटी के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, इवन डिसेबिलिटीज के बेसिस पे होने वाले इनइक्वालिटी को मीट करने की बात कहता है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक गोल नंबर यस मैम, एक बात बोली जाए तो ऐसा है कि हंगर इंडेक्स में 127 जो कुछ कंट्रीज है उसमें 105 नंबर है इंडिया का। yes, तो उसका क्या करें? That's the thing. It means we, as I said, नहीं, ये बात दूसरे प्लेटफॉर्म पे हुई थी। पिछली बार हम लोग एक बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे कि in a country like India where the population is so large, certainly nothing can be made in one fine day. That is for sure. But when it comes to taking initiative, somewhere one may think that education or academics is not rightly or correctly means directly related to this hunger and all. But
what I want to emphasize over here, that even the education policy is now being framed like that why हम लोग अभी बात करते हैं ना कि हमारे ग्रेजुएट्स भी एम्प्लॉयबल नहीं हो सकते हैं, इंडस्ट्री कहता है कि उनमें क्वालिटी नहीं है, और एक वो टू से 4th ग्रेड का जब जॉब आता है तो उसके लिए पीएचडी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। ऑल ओवर इंडिया ये सिनेरियो देखने को मिलता है। So that's why I am talking about कि NEP has put more focus on skill development and at the same time vocational education। तो इन चीजों को प्रमोट करने का एक पर्पस ये भी है कि जब अपना एजुकेशन, जो भी एजुकेशन का, या इवन द मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, कि आप जब एक ईयर भी एजुकेशन से लेकर निकलते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ स्किल रहे कि एटलीस्ट आपको भूखों मरने की नौबत ना आए। एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज। नाउ मूविंग अहेड, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इससे एकेडमिक्स कैसे रिलेटेड है? आप देखिएगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज, और एनईपी ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्वालिटी रिसर्च, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसर्च आर नाउ बीइंग फंडेड which has got social implications, and that's why I do say कि NEP somewhere also want to fulfill this particular goal through the quality research at the higher education institutions. Now coming to decent work and economic growth, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो और एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात हो या ऑटोनॉमी की बात हो, कहीं ना कहीं एनईपी खुद प्रमोट कर रहा है कि हमारा इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस बने, सो दैट वी इवन कि आप चाहें वो नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम बाय द यूजीसी, जैसे कि आप लोग आज एफआईपी कर रहे हैं, इन ड्यू टाइम ऑफ कोर्स आप लोग सब लोग एनएफएलपी के लिए अप्लाई करेंगे, एनईपी कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सारे कोर्स क्यों कॉन्सेप्ट में लाए जा रहे हैं? टू मेक पीपल मोर एंड मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज पैरामीटर्स, एट द सेम टाइम रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज। Till time in our education we are trying to address these goals either directly or indirectly through quality inputs in the education system. Apart from this, it also talks about climate action, be the life on land or be the life on water. So as I said, when we talk about ecology or environmental science as a subject, somewhere these three goals are being sensitized, or the people are being sensitized towards these three important sustainable development goals. Now coming to two most important: peace, justice and strong institution, and partnership for the achieving the goals. आप कहेंगे कि ये एकेडमिक्स में कहाँ फुलफिल हो रहा है? जब moment we talk about reducing social inequality and bringing equity in the system, और अगर आप एनईपी के पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था सीबीसीएस के समय भी, यू आर द पार्ट ऑफ एकेडेमिया, नाउ यू आर द यंग एनर्जेटिक पीपल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, काइंडली गो थ्रू एनईपी thoroughly. In a 66-page document, it's 70 times it talks about equity, diversity and inclusiveness. 66-page document and 70 times we are talking about that very same thing. At the same time, in NEP, 14 times they have used about the terms sustainability and sustainable development. So somewhere these things are there in NEP whole vision document. Well, coming to the thing, peace, justice and strong institutional autonomy is being conceptualized now, and it would become mandatory by 2035. NEP says that every institution will be mentored to become autonomous. The thing is that when we talk about partnership for the goal, in a country like India, when the infrastructure are limited due to huge population and limitation to the financial resources, we talk about hand holding, we talk about industry academia partnership. So somewhere
not only at the international platform, even at the national or the regional level, somewhere NEP promotes for having partnership, hand holding, so that the goal of sustainable development can be achieved. Now coming to the thing, if we talk about sustainability के 3 तय पैरामीटर है, आप सभी इसके बारे में जानते भी होंगे. We talk about कि होना क्या चाहिए, सोसाइटी यानी कि पीपल के लिए गुड लाइफ क्वालिटी होना चाहिए, प्लानेट यानी कि इकोसिस्टम को केयर करना है, एंड प्रॉफिट यानी कि इकोनॉमी. ये तीनों अगर कोहेरेंस में रहेंगे, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाएंगे, देन ओनली these 3 can lead to sustainable development. मैं जानती हूँ कि आप सभी इससे अवेयर होंगे, और दैट्स व्हाई आई डू से ना, मैं क्यों सस्टेनेबिलिटी को एक ऑक्सीमोरन कहती हूँ. आप देखिए कि अगर इन तीनों के लिए जब हम ज्वाइंट एफर्ट लेते हैं, तो the area that is being covered for sustainability is what a small parameter it becomes. It means कि achieving this whole sustainability, all for the people, all for the planet, and all for the profit, it appears to quite difficult. I won't say impossible, but I would say it's quite difficult. So the core element, as we talked about, it is economic growth, it is social growth, at the same time environmental growth. Looking at the time, I am not going in detail. What I want to make you people talk about, as I said, it is all about removing inequality from the society and moving towards the equity. इनइक्वालिटी से इक्वालिटी की तरफ बढ़ना एक कॉन्सेप्ट था, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इक्वालिटी आल्सो इज नॉट जस्टिफाइड, नाउ वी हैव टू गो फॉर इक्विटी. डिफरेंस आप सभी समझ रहे हैं? What is the difference between equality and equity? Is equality is justified or equity is justified? Anyone? Picture आप सभी ने देखा. Equity is justified, and difference all can understand. It's like that, even as that I had said earlier at a different platform, that if I have 10 toffee and 5 students and I am giving 2 to everyone, what it appears that I am not a biased teacher. I have an equal eye for all the students. Now the thing is that, is it true? क्या मैंने सबको 2-2 टॉफी बराबर दी तो मैं अपने अप्रोच में जस्टिफाइड थी? मैंने एक सस्टेनेबल वर्क किया? वाज आई ऑनेस्ट विथ माय स्टूडेंट्स? टोटल आउटकम में क्या नजर आएगा कि यस आई वाज ऑनेस्ट, मैंने किसी के लिए कोई बायसनेस नहीं दिखाया. मगर जरा आप उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और उसकी एफिशिएंसी देखिए. There may be a student who has got Cadbury at his home and he is not even looking at his fridge to have that toffee. There could be a student who often gets toffee, but still he enjoys whenever he gets that or she gets that. And there could be a student जिसके फैमिली में ब्रेड बटर ही अरेंज करना मुश्किल है, लाइवलीहुड ही करना मुश्किल है, तो उसके लिए टॉफी मिलना कितना इम्पोर्टेंट होता है. तो am I giving equal amount of happiness or resource satisfaction to everyone by giving 2 to everyone? No, not at all. No, ma'am. Yeah, and that's why I do say that the society should change. लेकिन ये मेरा कहना है, आप देखिएगा कि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी कैसे बनती है. स्पेशली मैं बिहार, झारखंड, यूपी की बात ज्यादा करती हूँ क्योंकि मैं इस रीजन को ज्यादा ट्रैवल की हूँ, फील करती हूँ. वो क्या आता है, सबको साइकिल बांट दीजिए सरकारी स्कूलों में, सबको ड्रेसेस प्रोवाइड कर दीजिए, विदाउट लुकिंग एट कि one who is in dire need and one who is really not utilizing that particular resource. So we have to move towards this approach called equity. And now I am telling you, this is not the real approach. Even equity is not justified. You people may laugh that कि अब आपको क्या चाहिए मैडम? ये तो रियलिटी है. ये तो इससे तो आप भी एग्री करेंगे कि ये सोसाइटी की रियलिटी है. जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट तो एटलीस्ट सबको बात देती है, लेकिन हमारी सोसाइटी क्या करती है?
आप जरा सा वो अपना वो बिहेवियर देखिए ना. Had we been invited to any marriage function, if someone is rich and we are going to that particular house, we will take that much expensive gift only. He already has, we are providing him more. And if someone not so financially strong, again we are taking something of, I would say, little bit lesser quality. Why so? ये कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी का कि जिसके पास है उसको और दो, जिसके पास नहीं है उसके लिए तो बॉदर ही मत करो. Yes. Anyone who had a different vision? Very true, ma'am. Very true. आप मुझे लग रहा है कि कोई इससे डिफर भी कर रहा है. Thank you. So people are agree with me. लेकिन मैं Thank you. But what I do say, like even with this reality, what should be the thing? Equality एक पैरामीटर था, equity was justified. Now we should have a justice. I think we are getting some noise from Mithun Raut ji. Mithun Raut ji, kindly mute yourself. Mithun Raut ji, kindly. So moving ahead, what I say, एक जो बात हम लोग कहते हैं कि दिया जाए न दिया जाए, it is who we are to decide कि किसको दिया जाए और ना दिया जाए. Be it on international platform, हम लोग कहते हैं ना कि जस्टिस कहाँ लाई करता है. स्ट्रॉन्ग कंट्री ज्यादा रिसोर्स यूज कर रही है, दूसरा कह रहा है कि हम तो अंडर डेवलप्ड हैं, हम कम यूज कर रहे हैं या हमको नहीं मिल रहा है. पर जस्टिस क्या है? जस्टिस ये है कि कभी कोई बैरियर होना ही नहीं चाहिए. द थिंग शुड बी इक्वली अवेलेबल टू एवरीवन. लेकिन क्या ये होता है? और आज की सोसाइटी जो रियल सस्टेनेबिलिटी है, इट आस्क फॉर जस्टिस. मैंने उस दिन मैं बार बार कंफ्यूज कर जा रही हूँ बिकॉज रिसेंटली आई टॉक्ड अबाउट दिस इंक्लूसिव एंड इक्वल एजुकेशन टू ऑल. सो द थिंग इज दैट कि जब ये बात अराइज होती है कि we are the one who have to make things equal to everyone, the thing is that if people are there with different capabilities, how we can expect to behave them equally? And that's why I do say justice lies in the term, let things be available for everyone, everyone according to their need, everyone according to their capabilities. Let them come up with the new form of development. मूविंग अहेड टिल टाइम. इतनी देर तक तो ये 3 पिलर की बात हम लोग, मैं जितना कह रही थी शायद आप जानते भी होंगे, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन मोर पिलर जिसको कुछ जगहों पे माना जा रहा है. अब तो खैर माना ही जा रहा है, लेकिन स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ. एनीवन जो कहे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और पीपल की बात कह रहे थे हम लोग. मैं चौथी बात कह रही हूँ सोशल, यानी कि सोसाइटी या कम्युनिटी को पार्ट बनाने की. वाओ, इट इज डिफरेंट. किस चीज की बात मैं कह रही हूँ? किसी को आइडिया? व्हाट इज द 4th पिलर ऑफ दिस न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैराडाइम? एनीवन? क्योंकि मैडम डेवलपमेंट समाज में ही होता है, समाज से बाहर. ओके, समाज के चलते. ओके, और कोई? सर एक तो वो ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट कह रहे हैं, तब भी इंक्लूड हो रहा है. और कोई? किसी के पास और कोई जवाब? इस पिक्चर को देखें आप लोग और बताएं आप किसको, इस पिक्चर को आप लोग कितने लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? कहाँ देखा था? देखा सबने है? आइसबर्ग है. आइसबर्ग है. कहाँ दिखाया गया था? क्यों फेमस है ये आइसबर्ग? टाइटैनिक मूवी. टाइटैनिक मूवी से ऑब्वियस सी बात है. सबने वो फैंटास्टिक मूवी थी, देखा ही होगा सबने, और सब लोग टाइटैनिक के बारे में भी जानते हैं. What this iceberg was all about? The thing is that कि ये आइसबर्ग ऊपर से देखने में छोटा लगा था, and the pilot who was at that time, the sailor who was at that time in that particular Titanic, he had also seen that, but उसने इसको इतना significant समझा ही नहीं. Why?
He just thought it is a small iceberg only and we will just pass it. But the thing is that that iceberg was huge enough. जितना वो ऊपर दिखता था उससे कई गुना ज्यादा वो नीचे था. And that's why the moment when the Titanic had a hit with this iceberg, what happened? A strong ship like Titanic also got broken, got drawn. और सेम वे में हम कहते हैं ये जो फोर्थ पिलर की बात हो रही है, इट इज नन अदर देन human culture, is the culture of society, is the culture of the nations. Different communities have different culture. ऊपर से देखने में बहुत छोटा लग सकता है. कल्चर की बात कहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? हमारा फेस्टिवल्स, हमारे म्यूजिक फॉर्म्स, हमारा डांस, हमारा गेम, हमारा फूडिंग पैटर्न, यही तो हमारे आर्ट क्राफ्ट्स, यही सब तो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं? तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे? बट अगेन आई डू कोरिलेट इट विद दैट आइसबर्ग कॉन्सेप्ट ऑनली. व्हाई सो? बिकॉज फ्रॉम ऊपर से ये सिर्फ फूड एंड ये दिखाई पड़ता है, मगर अगर आप डीप डाउन देखिएगा तो बेसिकली इट क्रिएट्स द, एज इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड आई सेड कि हम लोग बात करें रेजिलियंस की, and then only we can survive or we can become sustainable. Similarly, I do say ये हमारा जो कल्चर है वो डिसाइड करता है कि what would be the rule of our living standards. जैसे मैंने अभी इतनी दूर तक जो बात कही इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की, ये किसके चलते हो रहा है? ये हमारे सोसाइटी वैल्यू और सोसाइटी रूल्स के चलते ही तो हो रहा है कि गिव इम्पोर्टेंस टू समवन हु इज फिनेंशियली मोर स्ट्रांग. मोरालिटी को प्रमोट ही नहीं कर रही है. तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स ब्रेक किए थे ना. एक सीधा सा स्टेटमेंट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कहा जाता था कि पहले एक आईएएस ऑफिसर करप्ट होता था और सब लोग उसका नाम जानते थे. नाउ द सिचुएशन हैज जस्ट रिवर्स. अब सब करप्ट होते हैं और एक ऑनेस्ट होता है और सारी मीडिया में उसका नाम होता है कि ही इज द ऑनेस्ट वन. मींस बीइंग करप्ट हैज बिकम द न्यू नॉर्मल. सेम वे यू एज ए ह्यूमन बीइंग, आप अपनी सोसाइटी में किससे ज्यादा, आप सबको पता है, पीपल डू से अरे वो तो गुंडा है, वो बदमाश है, वो ऐसा है. बट सिंस ही और शी इज पावरफुल, तो आप क्या करते हैं? आप उससे अपने रिलेशंस और टर्म्स गुड बना के रखने की कोशिश करते हैं rather than giving value to the mankind. पहले जो वैल्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, पहले अच्छे लोग, मोरालिटी हाई होना, सच्चा व्यक्ति होना ज्यादा इम्पोर्टेंट था. लेकिन these rules are now being changing and we are looking at that titanic impact on our sustainability. Same I would say कि concept of nation, attitude towards the eldersness, living style, even our religious practices, our those religious what to say बाउंड्रीज कि ये करना सही है, ये नहीं करना है, ये सारे को अगर आप डीपली एनालाइज करेंगे तो विल फाइंड आउट कि मोर और लेस इट रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर. और अब इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एंड दैट्स व्हाई नाउ integration of scientific knowledge has also been added towards the sustainable development. और आप सभी जानते होंगे TKDL का वेबसाइट अगर आपने नहीं विजिट किया है, IKS का वेबसाइट नहीं विजिट किया है, तो I would say kindly go through those websites. You will get great information. And even मैं, जो कि आप फैकल्टी है तो आपके फायदे के लिए बता दूं, IKS में time to time they keep on offering projects that if you have some idea or concept about any traditional existing knowledge system or any knowledge that belongs to a particular community or tribe, or you want to thrive that, you can apply for the project and you will get funding from there also. So it would become my strong recommendations कि kindly आप लोग उन websites पे visit कीजिए, आप TKDL का site देखिए या फिर IKS का site देखिए and get benefited. So you can understand कि even at the national platform, now we are giving strong importance to our traditional knowledge, even what to say, conservation of biodiversity, indigenous knowledge, indigenous practices in the tribal communities, all are being now
considered as important component of sustainable development. Now moving the thing कि जैसा मैंने कहा ही हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स इतने चेंज हो रहे हैं, मुझे कविताएं पसंद है, तो मैं एक सिंपल सी कविता यहाँ इंग्लिश में रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं हिंदी में आप लोगों को कह देती हूँ कि जब वो आखिरी पेड़ भी कट जाएगा, वो आखिरी नदी सूख जाएगी, वह मछली जो आखिरी थी पकड़ ली जाएगी, क्या तब हमें एहसास होगा कि पैसे खाए नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे सिस्टम के नीड को कि वी नीड टू रिवाइव आवर सिस्टम टू हैव मोर एम्फेसिस ऑन आवर वैल्यू सिस्टम that is the part of our culture. It will make us more sustainable in future. जैसे हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का पैरामीटर एक जरूरत लगी, वैसे ही कहीं ना कहीं आप देखिएगा, और कोविड काल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप सभी देखेंगे कि कोविड में इंडिया के जो रूरल नॉर्म्स थे वो फिर आ गए थे कि हाथ धो करके घर के भीतर आइए और लोगों से कहते हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करना, हैंडशेक ना करना। कोविड अपने ये में एक ऐसा सिस्टम आया था जिसने कहीं ना कहीं बहुत से ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की, चाहे वो काढ़ा पीने की बात हो, चाहे हर्ब्स यूज करने की बात हो, चाहे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके जीने की बात हो, वो सारी चीजें कोविड काल में नजर आई कि अरे हमारा जो पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस था वो कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट था। Again, time is short, so quickly I am moving towards two more things I want to communicate to you people. That is like I am moving this thing. एक statement ये जो बात कहते हैं कि we are the first generation to feel the impact of climate change, and if we would become the last one if we really didn't do something about it. ये बराक ओबामा ने सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा था, बट कहीं ना कहीं मैं इसे पूरे ह्यूमन वैल्यू सिस्टम के लिए कहूंगी कि ह्यूमन वैल्यू सिस्टम तेजी से बदल रहा है, बट वी हैव टू थिंक अबाउट इट and we decide that what should be our value system. Moving ahead, I am giving you two examples very quickly because time is short. B Corp companies. I really don't know आप में से कितने लोग अवेयर है, समय नहीं है तो कन्वर्सेशन में नहीं पढ़ रही हूँ। ये एक आइसक्रीम कंपनी थी जो दो ब्रदर्स क्या टू फ्रेंड्स कोहेन एंड ग्रीनफील्ड ने एस्टैब्लिश किया था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जो भी सोसाइटी से मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो इस कंपनी में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी जहां एस्टैब्लिश थी वहां के डेवलपमेंट के लिए यूज कर दिया जाएगा। उससे जो प्रॉफिट आएगा वहाँ स्कूल बनाया जाएगा, उसी कम्युनिटी के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, उसी कम्युनिटी के यूथ वहाँ टीचिंग का जॉब करेंगे, उसी से मार्केट डेवलप किया जाएगा एंड सो ऑन। What will happen that they will make that community a self-sustaining society. So that was one initiative. एक वो अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है और बहुत सी कंपनी जो हमारे सो कॉल्ड नोन कंपनीज भी हैं वो इस सर्टिफिकेशन पे जा रही हैं। That is known as B Corp companies. Moving ahead, there is one more thing I would like to know you people about. That is disinvestment movement. That is known as divestment. Anyone who has idea regarding divestment? Divestment क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? Well, the thing is, हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, आप सभी शेयर ट्रेडिंग करते होंगे, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते होंगे, है ना? डिवेस्टमेंट इज अ कॉन्सेप्ट कि वी वोंट इन्वेस्ट द मनी हु यूजेस फॉसिल फ्यूल, वी वोंट इन्वेस्ट द मनी who uses fossil fuels. अब कहेंगे कि इससे क्या अंतर आ जाएगा, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एक सोनी तिवारी अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा नहीं लगाएगी कुछ भी नहीं होगा। एक कोई इसमें से यहाँ इतने लोग हैं, श्यामलिमा कश्यप का नाम दिख रहा है, या जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं आज, उसमें से कोई एक व्यक्ति पैसे नहीं लगाएगा उस कंपनी में तो उस कंपनी का कुछ नहीं होगा। लेकिन जरा सा इमेजिन कीजिए कि मैंने आज इस प्लेटफॉर्म पे कहा, मैंने अपने दोस्तों को कहा
कि सपोज कीजिए मैं एक कंपनी नाम लेती हूँ, आर्बिट्ररी कोई भी ABCD CCL एक कंपनी का नाम लेती हूँ, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि यार उसमें पैसे ना लगा, वो फॉसिल्स फ्यूल यूज करता है, वो एक सस्टेनेबल कंपनी नहीं है, और आप में 100 में से मात्र 10 लोग मेरी बात मान गए, इधर मेरे कलीग्स में से मेरे 10-15 कलीग मेरी बात मान गए, और मोर और लेस मैं कहूंगी कि मेरे कहने से तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल गेट्स कह दे कि इस कंपनी में पैसे ना लगाइए, क्या होगा? अगले दिन पता चलेगा वो कंपनी धराशायी हो गई, उसके शेयर्स गिर गए। एक रोनाल्डो बस एक कोक का बोतल हटा देते हैं तो कोक कंपनी खतरे में आ जाती है। सो यू ऑल कैन इमेजिन कि दिस divestment movement is a equally strong movement. It's like removing your investments from the companies who are using fossil fuel, because using fossil fuel is not nature friendly. I have lots of things to talk about the same, but we won't go fit in that detail. There are the list of the companies. These are the foundation. As I said कि एक इंडिविजुअल के एफर्ट से कुछ नहीं होता है, मगर एक इंडिविजुअल जब ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड स्पेशली व्हेन इट इज बाय द बिल मेलिंडा गेट्स कॉर्पोरेशन, व्हेन इट इज बाय रॉकफेलर फाउंडेशन, व्हेन इट इज बाय गार्डियन मीडिया ग्रुप, अगर ये ग्रुप्स किसी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेंगे तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। और मैं आपको एक डाटा यहाँ पे देती हूँ, आज तक में 3.4 ट्रिलियन मनी ऑलरेडी ड्यू टू डिवेस्टमेंट रिमूव हो चुकी है। मेरे पास ये पुराना डाटा है, 2023 का ये डाटा है, बिकॉज रिसेंट डाटा आई वाज नॉट एबल टू रिट्रीव फ्रॉम द नेट। सो यू कैन अंडरस्टैंड इवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेस्टमेंट इज गोइंग टू मेक चेंजेस इन द सोसाइटी टाइम एंड अगेन। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि एक ब्लैक आदमी जब व्हाइट क्लास में आया था, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्लोरियन, कि मैक्लोरियन जब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने थे, व्हेन ही बिकेम द पार्ट ऑफ व्हाइट्स क्लासरूम, तो किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि क्लासरूम का शेप इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और आप हर इंस्टीट्यूशन में आप देखते हैं कि हर कास्ट क्रीड रिलीजन के लोग हैं। सिमिलरली डिवेस्टमेंट मूवमेंट जब चालू हुआ तो वे से फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे डाइल्यूट हो गया, वैसे ही फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। एंड टाइम एंड अगेन आई डू से, ये इतना ह्यू एंड क्राई कौन, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और इसलिए हम लोग पीपल ऑफ प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं। प्लैनेट ऑलरेडी सेव्ड है, प्लैनेट कहीं नहीं जाने वाला है। It's we are talking about the our species, we are concerned about Homo sapiens sapien, and we are concerned कि अगर ये planet पे ये environment नहीं बचा तो हम कहाँ जाएंगे। That's why do remember there is no planet B, so that we have to take this sustainable initiative. Thank you everyone, and as the time is quiet, I am over with the time. So like always I would say, मुझे हमेशा यही फीलिंग रहती है कि आप सभी बहुत ज्ञानी हैं, बस आप शेयर नहीं करते हैं। कम अप विथ योर नॉलेज, और अगर मैंने आपका एक्स्ट्रा समय लिया है तो रियली सॉरी। थैंक यू एवरीवन। इट इज ऑल माय टेक ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। दिस इज द न्यू पैराडिग्म टुवर्ड्स द academia for sustainable development. You all are open to put your questions or anything you want to rectify me or add something to my dimension. You're most welcome everyone. Thank you Kalpana ji, अर्चना जी, थैंक यू। किसी की तरफ से कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहता है? मैम आपने जो DDT का बताया ना, यस वो एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज में बैंड है, लेकिन इंडिया में अभी भी लोग यूज कर रहे हैं उसको। अभी भी यूज कर रहे हैं। इवन पर कैपिटा इनकम का भी जो पैरामीटर है ना मैम, उसको भी बदला जा रहा है, बिकॉज मॉनेटरी वैल्यूज आर डिफरेंट एट डिफरेंट वेयर। मैंने कहा ही कि नाउ इट इज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन। आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर ले कि सोसाइटी नॉर्म्स की बात कर ले, तो somewhere new things are bound to come and we have to adapt by that way. हाँ, लेकिन ये कहेंगे कि as a human being, the more and more we will move towards values, more and more sustainable system will form. हमें अपने डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बदलने की तो जरूरत है। और किसी की तरफ से कोई बात?
और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा तो, जो कि मैं कहना भूल गई हूँ, या आपको लगता है कि इस सेशन में वो बात भी होनी चाहिए थी? मैडम पॉलिसी तो बहुत बन रही है, हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन जो ग्रास रूट पर रियलिटी ग्राउंड जो है वो उससे जो है देखिए एकदम से टोटली डिफरेंट है मैडम। जिस फील्ड में मैं काम करके आया हूँ 7 साल बेसिक एजुकेशन में मैडम, उसके बाद हायर एजुकेशन में आया हूँ, लेकिन वहाँ पे ये हल्ला बहुत हो रहा है, शोर बहुत हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वहाँ कुछ और है मैडम। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और सर आप बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप काम कर चुके हैं तो बहुत अवेयर हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सर, पॉपुलेशन इज वन सच बिग इशू ना, कि इनफिनाइट रिसोर्सेस तो है नहीं, देयर इज अ लिमिटेशन टू द रिसोर्सेस। और उसमें भी अगर हम ह्यूमन, मतलब लोग बार बार कहते हैं क्राइसिस ऑफ एनर्जी एंड क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेज, but more or less I always do say it's the crisis of the system, means crisis of the value system I would rather say। और सर आप देखिएगा कि जो ग्रास रूट लेवल पे काम अगर नहीं हो रहा है तो उसमें भी मेजर रीजन आप देखिएगा कि फिर डे एंड पे वही करप्शन एंड ब्राइबरी है, क्योंकि जो पॉलिसी बन रही है वो तो बहुत नोबल कॉन्सेप्ट पे बन रही है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है तो इतनी ज्यादा मैल इंटेंशंस आ जा रहे हैं कि वो रियलाइज नहीं होता। जी जी, ये तो बहुत बड़ा इशू इंडिया के साथ है। और दूसरी बात, इतने बड़े पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए ना सर कोई भी एरर फ्री पॉलिसी नहीं बन पाएगी। नो मैटर हाउ मच नोबल वी रिमेन इन आवर अप्रोच, it is going to take a great good time to achieve those targets। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी की तरफ से कोई बात? और मैं बहुत बार कहती हूँ सर, ये जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, जैसे आपने कहा ना पॉलिसी, लोग कहते हैं पॉलिथीन यूज करना बंद कर दिया जाएगा तो इन्वायरमेंट ये हो जाएगा। एक बात सोचनी चाहिए, पॉलिथीन यूज में आया ही क्यों था? अरे ऑब्वियस सी बात है कि जब पैकिंग के लिए, जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीपर मटेरियल की जरूरत पड़ी और सस्टेनेबल मटेरियल की जरूरत पड़ी, तब पॉलिथीन यूज में आया। अब उसके इम्पैक्ट्स नजर आने लग गए हैं, तो आप तुरंत क्या कहते हैं कि रिन्यूएबल मटेरियल पे शिफ्ट हो जाओ। क्यों? कागज के लिए फिर हमें जितना पैकिंग के लिए जितने कागज चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, क्या उसके लिए फिर पेड़ नहीं कटेंगे? तो घूम फिर के बात तो वही आ जाएगी। पीपल डू से कि फर्नीचर ना यूज कीजिए, मेटल सिस्टम पे शिफ्ट कीजिए। मेटल प्रोड्यूस करने के लिए फिर क्या होगा? अगेन एक्सट्रैक्शन एंड माइनिंग विल बी रिक्वायर्ड। लोग कहते हैं बैम्बू सिस्टम पे शिफ्ट कीजिए, फिर तो वही होगा, एक्सटेंसिव कटिंग ऑफ बैम्बू हो जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज कंप्लीटली अ विशियस साइकिल। रिसोर्सेज आर बीइंग लिंक्ड टू वन अनदर। So certainly population size also plays a major role, and more than that value system is going to measure, because होता क्या है, एक गाड़ी से काम चल सकता था लेकिन हम 4 गाड़ी रखे। क्यों? वही हमारा इम्पोर्टेंस सोसाइटी में दिखाना है। तो किसको दिखाना था? वही अपने नियर डियर वंस को ना। और हमारे नियर डियर वंस ही उसको वैल्यू ना करें, तब अगर हम सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज करेंगे, वैल्यू सिस्टम चेंज करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नजर आएगा एनवायरनमेंट पे भी, कल्चर पे भी और डेवलपमेंट पे। Very true, ma'am. That's the thing. So I think when your next session is scheduled? Okay. Somewhere I am making a mistake. My time is more or what? Yes, madam, it is up to 12 o'clock. Okay. Why skipping the thing, and I thought it's going to end at 11:30 only, and I wasn't quite. It is a 1.5 hour, 90 minutes. Sorry. So we can talk a little about one more thing. I would like to know, you people know about the things. Yes, as I was talking about this investment movement, just a sec. Let me. Yeah, it's visible? Yes. Yeah, the two things I quickly skip, but I could have given more focus. I am talking about this very thing. आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा, ये जो बी कॉर्प कंपनीज की बात मैं कह रही थी, तो बी कॉर्प कंपनीज वो कंपनीज थी जिसमें कि मैंने कहा कि दीज वेर कंसिडर्ड टू बी अ कंपनी विथ अ पर्पस।
कंपनी विथ अ पर्पस का मीन्स क्या था? हर कंपनी का तो पर्पस होता है टू मेक प्रॉफिट, इजंट इट? हर कंपनी का तो ही पर्पस होता है टू मेक प्रॉफिट। और उसके बाद वो करते क्या है, जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो, किसी साल टर्नओवर ज्यादा हो, तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, एज अ बोनस, एज एन इंसेंटिव आपके एम्प्लॉइज को दे दिया जाता है। लेकिन ये कंपनी का पर्पस ही दूसरा था। व्हाट दे डिड, दे सेटल देयर कंपनी इन अ ये जर्मनी का कॉन्सेप्ट था। वो ऐसे रूरल एरिया में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश किए जिसमें उन्होंने काम दिया उन लोगों को जो लोग इधर मीन्स व्हाट टू से, जो ड्रग एडिक्ट्स थे या फिर जो जेल जा चुके थे, और वो लौट के आए थे तो सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस कम था। ऐसे लोगों को उन लोगों ने एज अ वर्कर एम्प्लॉय किया। नाउ द थिंग इज दैट कि दे स्टार्टेड मेकिंग आइसक्रीम विच हैज अ गुड मार्केट इन द किड्स मार्केट ऑफ द नियर बाय सोसाइटी। और हुआ क्या कि ये कंपनी जब ग्रो करने लग गई तो दे आस्क कि अब हम प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट है वो सारे लोगों के, उन्हीं लोगों के एम्प्लॉइज के लिए घर बनाने की व्यवस्था की गई प्रॉफिट से। लिटिल लेटर with that profits further they established a school, और स्कूल में भी क्या किया गया, उसी एरिया के अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब दिया गया, एरिया के बच्चे जाने लगे। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो जो रूरल एरिया था that developed into a completely self-sustaining, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, इवन शॉपिंग मॉल्स डेवलप किए गए। और कहते हैं ना कि वो एरिया अपने आप में विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प it became a self-sustaining developed area. So that became an example, and that's why इस concept को further 3 लोग carry out किए थे। It was Gilbert, Holcomb and Cassoy, को आप लोग नेट पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में information। And they started providing B Lab certification. B Lab certifications Ben Collins के नाम से start हुआ था, but B Lab certification is being given to all those companies जो अपने इन्वेस्टमेंट को रूरल डेवलपमेंट और इमीडिएट डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। अब आप लोग कहिएगा, एक सिंपल सी बात है कि एक चीज कहलाती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR में भी तो कंपनी को अपने प्रॉफिट का देना होता है 10% सोसाइटी के लिए। तो आर दिस टू थिंग्स आर सेम? Are these two things are same? Or if there is a difference, what is the difference? Anyone? जिसको idea हो what's the difference is? And CSR is a means enforceable duty which is provided under the Companies Act 2013. Yeah, that's the thing. The CSR is something that is enforced by law. It means if they won't do that, they will get punishment. That's why they are investing their money, and that's also the part of their profit. But as far as B Lab certified companies are concerned, they had made their policy. They are not asking for any rules and something like that. They had their policy that whatever profit we will occur from this, we will invest this profit into the society itself, or rather I would say the adjacent society, so that due to existence of that company, that society will get developed. And this sort of B certified companies is concerned, आप देख सकते हैं कि there are total 162 B certified there are 8,254 B certified company in 96 countries with more than 162 industries. So you all can imagine कि ये कितना concept popularize हो रहा है। और मैं इसको इसलिए कह रही हूँ कि अभी जो बात हम लोग कह रहे थे ना कि नॉर्म्स बदलिएगा तो चीजें बदल जाएंगी। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी को वैल्यू करना होता तो ऑब्वियसली वी हैव बिल गेट्स एंड अदर दिस मार्क जुगरबर्ग और एलन मस्क जो कि इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यू कैन गेट एन आइडिया विद दिस डाटा कि नहीं, अब लोगों का थॉट बदलता है। और आप देखेंगे कि ये सारे जिनके भी नाम ले रही हूँ, they are also becoming the big philanthropist. Why so? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हिट कर रहा है कि no, the new parameters are different. We will get respect only if we don't have money and power, but also at the same time when people really respect us and value us due to our deeds.
and that's why it matters. This is the list of the B Corp companies. Divestment movement, as I said, it is the concept of removing your money from the company who are using fossil fuel. ये कॉन्सेप्ट आने के साथ एक देखिए कि लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर, एनर्जी है, जॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन है, ये सारी कंपनी, इवन जो व्हाट टू से ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में काम कंपनी करने वाली कंपनीज है, एनर्जीज कंपनी है। लेकिन जहां तक मैंने बात की कि भारत में अगर बात कर ली जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें अभी इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिए गए हैं। मैं यहाँ वो स्लाइड मिस कर रही हूँ, एक स्लाइड में मिस कर रही हूँ जिसमें मैंने कोशिश की थी दिखाने के लिए कि बैंकिंग सेक्टर्स ऐसे हैं जिसने इसमें इनिशिएटिव लिया है। HDFC इज वन ऑफ दैट। और मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आप सोचेंगे कि बैंकिंग का फॉसिल फ्यूल से क्या लेना देना। Banking sector is someone who provides loan to the companies, and these banks have said that we won't provide loan to those companies who are using fossil fuel. So somewhere these banks have direct impact on establishment of such company who are using fossil fuels or who are not nature friendly. Moving ahead, list of the companies are there. और जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति का इनिशिएटिव शायद मैटर ना करे, लेकिन जब एक इतना बड़ा फाउंडेशन हो, बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन अपने आप में मैं कहती हूँ कि अगर ये किसी भी कंपनी से अपने शेयर या अपना सपोर्ट खींच लेंगे तो उस कंपनी का एग्जिस्टेंस क्राइसिस में आ जाएगा। Rockefeller is the same one, even British Medical Association. So somewhere these foundations are also showing great concern about the यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। एंड देखिए ये इसी स्लाइड की मैं बात कर रही थी। इंडियन बैंक्स की बात कर ली जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, एक्सिस बैंक, ट्रस्ट ग्रुप, HDFC, these are the company who are the means they are providing funds to those projects who are now stopping using fossil fuel. IDFC Bank, now called as the IDFC First Bank, is the policy towards mitigating climate change. तो ये आप सब समझ सकते हैं कि now this concern is global and huge amount is being taken from these industries, means due to just use of fossil fuel, and somewhere global awareness is now arising among the peoples for disinvestment. That's it. Planet B की बात और स्पेशल करनी नहीं थी, तो more or less I am at the end of the session. और कोई आप अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहते हो तो feel free to for the same. Ma'am, what are the advantages of getting B certification? It's like that. It's not the matter of getting B certificate advantages. ये देखिए एक मैं mindset की बात कहती हूँ मैडम, जैसे आपने भी पूछा, once you get B certification, जैसे कहते हैं ना कि NAC में A ग्रेड आने का क्या मतलब है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो you all had a quality system. लेकिन the moment you had a quality, what's happened after getting A grade? You started getting good funding from the गवर्नमेंट ऑल्सो, इजंट इट? ये होता है कि नहीं? वही बात की है तो उसको और दे दो, और बेहतर करने के लिए दे दो। द सेम थिंग इज विथ बी कॉर्प कंपनी। अगर आप बी कॉर्प सर्टिफिकेशन हो जाता है तो आपके बहुत तरीके के टैक्सेस एग्जम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या कह रही थी यहाँ पे कि बी कॉर्प कंपनी का बेसिक पर्पस ही यही है कि दे डोंट वांट गेट बेनिफिट फॉर देयर सेल्व्स, they just do the work for the benefit of society, and whatever additional taxation benefits, those additional land grant benefits, or even those production benefits that is being given to these companies by the government now also, just due to their what to say social initiative. The thing is that basically at the day end, with all this advantage, they want to provide more and more infrastructure and more benefit to the society itself. Okay. And it basic concept ही यही होता है कि profit is for all, and that profit should go for the benefit of the society. Anyone else? और किसी की तरफ से?
or anyone who want to experience that? Thank you, madam. Thank you. Very nice session, madam. Thank you, Gulab ji. And someone has Asa ji has asked me that what as an academic, how we can implement this concept in the academic syllabus. Two things are there, ma'am. Once the government concern is already there, and that's why they have talked about inclusion of this environmental in every subject. IKS आप सब जान रहे हैं कि आज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको अपने कोर सब्जेक्ट का भी IKS क्रिएट करना है और आपके सिलेबस में इंकॉर्पोरेट करना है. बट टाइम एंड अगेन एज आई से, we as an academician, we are the one who are in direct contact with the young generation or youth of our nation. And somewhere as a teacher, what we do, what we practice, to some extent, I won't say कि हम जो बोलते हैं वो बच्चे पूरा follow करेंगे, but to some extent, somewhere we do become role model to our students also. And the more and more value system we would try to inculcate in our students, certainly it is going to reflect tomorrow in the society. Because at the day end, it is the youth, it is the graduates of our college only who are going to be an IAS officer tomorrow, who is going to be a banker tomorrow, who is going to be an industrialist tomorrow, isn't it? So the thing is that whatever value I have calculated, if I had given that sense of environmental sensitiveness to that particular student, he or she, wherever she may be, he would value life, he would value those practices. So certainly as an academician, the one who changes the shape of the education supposed to change the shape of the society. So certainly we are the key factors who can change the shape. लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, मैं विनोद जी का एग्जाम्पल लेके कहते हूँ कि वो कहेंगे कि मैडम ग्रास रूट पे कोई चेंज नहीं आएगा. ग्रास रूट पे तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक हम अपने एक्शन में अपने डे टू डे प्रैक्टिस में ऑनेस्ट नहीं. मैं बच्चों को भाषण तो खूब अच्छा दे लेती हूँ क्लाइमेट चेंज पे, और जब मैं अपनी सॉफ्टवेयर ड्रिवन एसी कार में बैठ जाती हूँ तो क्या एग्जाम्पल पुट अप करती हूँ. जिस क्लास में हम बैठ रहे हैं और वहाँ 6 एसी और 1 स्मार्ट बोर्ड और 4 माइक ऑन है, हम क्या एग्जाम्पल सेटअप करते हैं. लिमिटेशंस हो सकते हैं. देखिए मैं बार बार कहती हूँ, तो आप कहेंगे कि क्या करें मैडम, तो क्या कार से ऑफिस ना जाएं, क्यों ना जाएं, लेकिन फुल कार कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता. आप सभी सर्च कीजिएगा. हिज नेम इज आई एम मिसिंग दैट नेम, इफ समवन ऑफ यू कैन हेल्प मी आउट. आपके महाराष्ट्र से ही है, सोलंकी जी, IIM से. सोलंकी जी, डू यू नो some Solanki, the solar man of India? If you people can recollect his name, anyone? Just a sec, I am just recollecting. Chetan Singh Solanki and yeah, what's his name is? Chetan Singh Solanki. Chetan Singh Solanki. Yeah, thank you very much, ma'am, for making me remind. So Chetan Singh Solanki is nothing but he's a teacher like me and like you, isn't it? You are teaching in your colleges. He is teaching in his IIM institution. But the thing is that once man's initiative to sensitize the people has bring the change. And if you think that every one of us started practicing like that, would it bring change or not? और जरा सा आप देखिए, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं कह रही हूँ कि भाजपा ने किया है कि कांग्रेस ने किया कि आपने किया, but the thing is that कि that one lady, the one who has been awarded with Padma Shri, Mother Nature, what's her name is? आप सभी को उसका चेहरा याद आ रहा होगा. रांगोळीला पळतो, जिन्होंने ट्री लगाया था. ओके ओके ओके, मी तुला 10 मिनिटांनी करते कॉल. नहीं याद कर पा रहे हैं आप लोग? तुलसी गौड़ा. Yes,
तुलसी गौड़ा। धर्म रक्षण तो करने के लिए आप भी उनका बहुत- जेस्चर देखिए, आप सबको अगर नहीं रिकलेक्ट कर पा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि मोबाइल या फिर मैं शेयर कर सकती हूँ, बट आई वोंट टेक टाइम। सो द थिंग इज दैट तुलसी गौड़ा एक खुद में एक इंडिविजुअल, और कहीं ना कहीं अगर उनके बैकग्राउंड फिनेंशियल और पावरफुल बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। वो तो एकेडमिक्स में भी नहीं थी, और कहीं ना कहीं आई वुड से कि ना फाइनेंशियली स्ट्रोंग ना सोशल एक्सेप्टेंस। तब एक तुलसी गौड़ा अकेले जब अपने दम पे मोर देन 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगा सकती है, तो वुड शी ब्रिंग चेंज और नॉट? So it all depends upon how much honest we are and how much willing we are to take initiative. So these things matter, and as an academician also, when we have so many young energetic minds with us, we can take this initiative. The thing is that it all depends upon our strong commitment towards the cause and our willingness to take action. Salman. So hopefully I addressed you, Asha ji. माझ्या घरी तो मेकअप बॉक्स आपण मागवू बरं online. Anyone else? So more or less. Yes, thank you आशा जी। और किसी की तरफ से कोई बात जो आप अपनी तरफ से कहना चाहें? मैम? Yes, सुनील जी। Yes, I am from Assam and हमारे यहाँ भी एक ज़्यादा पाइंग नाम से एक आदमी है, वो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक पूरा द्वीप को फॉरेस्ट बना दिया है, आइलैंड को। देखिए, that's the thing. मैंने कहा ही सर, और ऐसे आप देखिएगा ना कि हम लोग इग्नोर करते हैं हमारे इमीडिएट सोसाइटी में large changes or even changes at very small scale, but that has put a significant impact on someone else's life. ऐसे examples बढ़े हुए हैं, but matter करता है how much committed we are. हम लोग सीधी सी बात कहते हैं पॉलिथीन्स यूज, बैन पॉलिथीन्स एंड ऑल। कोई कहता है कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन बैन क्यों नहीं कर देती है, बट एज ए टीचर और एज ए इंडिविजुअल सोचिए ना, हम में से कितने वो इनिशिएटिव लेते हैं कि कपड़े का थैला लेके जाएं। जिस समय गवर्नमेंट पॉलिथीन बैन करती है तो आप पहली बार, मैं विनोद जी की बात से हमेशा अग्री करती हूँ, ग्रास रूट लेवल पे क्या होता है, लोकल थाने वाले को पैसे देके सब्जी वाले रखते हैं, और हम द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग जाके पॉलिथीन नहीं लेके आते हैं, और नहीं मिलता है तो हम लोग इरिटेट भी होते हैं मेनी टाइम्स। अरे यार क्या झमेला है, क्यों? Because we don't want to be in that, even that very little discomfort zone. और हर कोई ये प्रैक्टिस बना ले, हर कोई अगर कपड़े का थैला। और एक बात मैं कह रही थी, ये बी कॉर्प कंपनी के कॉन्सेप्ट के ही आप सोच लीजिए। द थिंग इज दैट ये थैला लाने का फाउंडेशन कब होता है? जब गवर्नमेंट की लाठी चलती है, जब रूल बनता है कि पॉलिथीन नहीं मिलेगा। लेकिन हम और आप इतने सेंसिटिव और रियली कंसर्न हैं, तो विदाउट रूल ही हम क्यों ना उसके यूज को खत्म करें? ये भी हमें इंडस्ट्री बना के ही इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं थी। बट द थिंग इज दैट, जैसा मैंने कहा ना, हम अपने वैल्यू में इतने स्ट्रांग हो ही नहीं पा रहे हैं, हम इतने सेंसिटिव हो ही नहीं पा रहे हैं। टाइम एंड अगेन वी हैव बिकम सो मच सेल्फ सेंटर्ड दैट वी आर नॉट बॉदरिंग व्हेन द थिंग्स आर बीइंग टॉक्ड, इवन वी टॉक एंड देन इमीडिएटली वी फॉरगेट। अगर हर व्यक्ति अपने घर से कपड़े का थैला ही लेके निकलता है तो एक सिंपल सी बात है, आप अपने घर से 1 किलोमीटर दूर अगर सब्जी मार्केट है तो पता चलता है कि भाई मैं तो प्रोफेसर साहिबा हूँ या मैं प्रोफेसर साहब हूँ, तो पता चलेगा कि विदाउट कार के चल नहीं रहे। क्या एक हेल्दी फिटनेस के लिए 1 किलोमीटर वॉकिंग नहीं सस्टेनेबल है? वोंट इट रिमूव लॉट्स ऑफ इश्यूज? हम 5 मिनट किसी के साथ रुकने को तैयार नहीं है कि अपने कलीग को भी रास्ते में ड्रॉप करते हैं। वी डोंट हैव दैट पुल कार कॉन्सेप्ट्स। व्हाई सो? ये सारे इनिशिएटिव कुछ प्लेटफॉर्म्स पे लिए जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, वी वांट सो मच कंफर्ट ना, इतना ज्यादा हम लोग रिसोर्स यूटिलाइजेशन के आदी बनते जा रहे हैं और उसको इतना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि समवेयर वी आरसेल्फ आर मूविंग अवे फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी।
the more and more value we will give to these only systems, automatically sustainability itself will come to the system. और डे एंड पे एक बात तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप नहीं कुछ कीजिएगा, इट डजेंट मैटर, नेचर नोज कि मुझे कैसे बदला लेना है, और नेचर अपने आप अपने लिए चीजों को मॉडिफाई कर लेती है। आप डेवलपमेंट कीजिए, आपने होटल्स बनाए, वी हैव दैट केदारनाथ स्ट्रेटजी, आपने वो क्या कहते हैं डिफरेंट व्हाट टू से डेवलपमेंट्स के पैरामीटर्स लिए, आधुनिक लैब बनाए विदाउट क्लेमिंग टू एनी कंट्रीज, वी हैव दैट कोविड पीरियड। और कोविड पीरियड में क्या हुआ, मैनकाइंड तो सस्टेन किया, आपकी सारी इंडस्ट्री, सारा प्रोडक्शन, सारा ट्रैफिक रुक गया कि नहीं रुक गया एक रात में? और everybody has bitter experiences of COVID, if not in the family then with the near and dear ones. But the thing is that nature always takes its own course, whether you realize it today or when it has already taken action. It knows how to balance the things. So it is much better rather than nature take initiative as a mankind, the so-called जो कहा जाता है ना सबसे डेवलप्ड प्रजाति है, the most developed species is Homo sapiens. So it is much better that we should take initiative for the betterment of nature itself. So here I'm ending the session with this very thing. I think anyone else who want to say something else, or we can end over here? Very nice session, madam. It was a wonderful insight about sustainable development goals, and many other stories also you have shared with those we are all unaware about it. So friends, if you have any query, please ask. Otherwise, we will wind up our session for That's the thing. That's the thing. Yeah. Actually, I got that misconception that Yes, madam. You thought it is up to 1:30, 11:30. The things, yes, I'm sorry for the same. But then after you have covered many new things also after 11:30. Yes. Thank you, Priti ji. और मैं सबको कहूंगी, it's everyone's effort that can bring change in the society. Yes, very true, ma'am. Day and we the mankind, we are with immense power, and especially we the people in academia have huge number of students, youth with us. हम लोग वैल्यू सिस्टम, be it NCC or NSS of your institutions, if we make contribution toward the society, automatically it will reflect in the society. Yes, ma'am. Yes. Okay, so then friends, वहाँ पे रुकते हैं. I extend my sincere thanks to respected Soni Tiwari madam once again for engaging wonderful session for all of us, madam. Thank you for both the day's sessions, madam. Namaste, ma'am. Thank you, Priti ji, for providing this opportunity, and thank you, participants, for listening. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Thank you. Good day, ma'am. Thank you. Thank you, friends. Here you please proceed for your lunch break. We will start our next session at 12:30. 12:30 बजे हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, और वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल बी ऑन माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान. आज और कल दोपहर में वो सेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तुरंत लंच करके रिज्यूम करिए मीटिंग को. 12:30 बजे हम नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन.